कहाँ देखूँ? चलो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। साड़ी में? What? Seriously? आप आज ही पैदा हुए हो? हाँ, exactly. Thank you so much. चलो. Thank you. I think आज का आउटफिट चूज़ करने का जो मोटिव था वो यही था कि फेस्टिविटीज़ आर ऑन और everyone is dressing in Indian, so I just thought let me just wear a nice silk sari, so that's it. और कोई मोटिव नहीं था. I just wanted to dress Indian and look pretty. Tell us something about night. Well, मुझे ऐसा लगता है कि as an actor it is very very rewarding when you get to perform different roles, and it is even more rewarding जब आपको theatre play करने को मिलता है, which is the very origin of acting. तो मुझे षड्यंत्र play करने का मौका मिला. I got to play Natasha in षड्यंत्र, which was produced by Z Theatre, and I loved every bit of it. I loved to perform. I got to work with some incredible actors, the director, the cast and crew. I had a fabulous experience, and then winning an award for my performance, I think that's the icing on the cake. मैं बिग बॉस तो फॉलो करती हूँ बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आप सबको ये भी पता है कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती हूँ. मुझे जो कन्वे करना था ना वो मैंने बहुत ही क्लियरली कन्वे किया है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से कन्वे हुआ, और आई थिंक जो मैं करना चाहती थी वो हो गया. दैट्स ऑल. एंड आई वांट टू थैंक एकता. यस, वी लव यू ईके. Recently, what? Oh yes. That's something which is like another feather in, I think, first in the director's cap, and then all of us we really worked hard for it, and then आपको one fine day आपको एक मेल आता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑस्कर लाइब्रेरी में वो लोग अक्वायर करना चाहते हैं. तो और मुझे पता चला है कि बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट अक्वायर की गई है बाय द ऑस्कर लाइब्रेरी. सो मैं क्या कहूँ, आप बताइए. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ, एंड इट्स स्टिल अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वे टू गो, बट शुरुआत अच्छी हुई है. नहीं, देयर इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन सून. थैंक यू. कितने विजुअल. तुमने मुझे पहली बार साड़ी में देखा है है ना? थैंक यू. सॉरी भाग रही हूँ. थैंक यू. सॉरी भाग रही हूँ क्योंकि फिल्म सिटी में अभी तक शूट चालू है, और मैं नहीं चाहती कि यूनिट वेट करे. तो लाइटिंग हो रही है, उतनी देर में भाग के आई हूँ. अकरम मुझे बाइक पे लेके आया है. सुबह 7 बजे से शूट कर रही हूँ. होपफुली जल्दी पैकअप करके घर जाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. इतना सारा प्यार आप लोग मुझे देते हैं. थैंक यू. शूटिंग के कपड़ों में आई हूँ. मैं शूटिंग के कपड़े में आई हूँ. क्या मैं डिजाइनर कपड़ा पहन के चलो. थैंक यू.
अवनीत 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 भाई आपका विश्व दे Hi. Thank you so much. I got for the promising actor female of the year, and I got this for Tiku at Sheru. So this is my first award for Tiku at Sheru, and that means a lot. This is a really special one. tell us something about it. How blessed do you feel to get this award? So this is from Art Gully, and they've nominated. So I'm really, really thankful, and I'm really happy to the jury. I'm really, really thankful to the jury, and yeah, it's a really special moment because as the audience loved Tiku so much, so just knowing that and getting an award for Tiku is really, really nice. Yeah. Yes, that was. Tell us how was that debut for you? As I say always, I'm always going to be thankful to Kangana ma'am for selecting me for this role. Although being it so challenging, as I've always, we've always talked about this before also, that she was going to do this role herself, but then she gave it to me. So a big move like that really, you have to have a lot of trust in that person, and she had that trust in me. So I'm really thankful for that. And Nawaz sir, congratulations to him also. He's doing so great, and he's an amazing actor. So there are a few projects that are lined up. I'm shooting for one already, so going back and forth for that. But most probably this year you'll get something. No, I'm not really. Those both are movies, the ones that I'm doing. Thank you. Done? Well, I think it's red carpet, so gown would be the best. That's what I thought, and that's why I dressed into one. ये मेरी फैमिली के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि लोगों को इतनी पसंद आई है हमारी सीरीज़, और उसी के लिए अवार्ड भी मिल रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी, एंड आई होप कि लोगों को ऐसे ही हमारा शो आगे भी पसंद आता रहे. नॉट रियली, नॉट गेटिंग अ चांस, तो एपिसोड्स नहीं देखे हैं. लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्पसेस हियर ऑन देयर. सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया दीज डेज यू कैन स्टिल कैच अप. तो बहुत बहुत मामूली सा देखा है. आई एम शूटिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग, सो होपफुली वेरी सून यू विल कम टू नो. I call this year my audition year. I've done all kinds of roles.
हर टाइप का काम किया इस साल और बहुत मज़ा आया सारे प्रोजेक्ट्स करके. स्टार्टेड विद पिक्चर्स, लकड़बग्गा, असुर, बदतमीज़ दिल, आई मीन मुंबई डायरीज, असुर and Jawan. So it's been a good year, a dream for any actor, I would say. So yeah, I'm happy. Tell us something about it. When we see Lakadbagga, Asur, Jawan, Mumbai Diaries, there has been such a great performance that you have done. Which is your personal favorite? I love everything. I'm an actor. I love being on set. So everything I do is my favorite. Every day of work is my favorite day. So And how was your experience sharing a screen with Deepika ma'am and Shahrukh sir? it was fantastic. I think they're very, very sweet, very humble. That's both of them. Very humble, very down to earth. I mean, so I hope all superstars are like that. Is what I can say. And how long we have to wait for Asur 3? गौरव इज हियर. आप लोग मिले गौरव से? गौरव द राइटर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर जो लिखते हैं असुर, वो यहाँ है. अगर आप मिलेंगे, हैज ही कम? ही इज कमिंग. I hope we don't have to wait for like 1 or 2 weeks after wait कर लिया. या सो ही इज़ द बेस्ट वन टू एक्चुअली आंसर दैट फॉर यू. अगर मुझे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली पूछ के आपको बताऊंगी. In fact, your best friend Ankita was in Bigg Boss. शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड. शी इज़ नॉट माई फ्रेंड. I know her socially, as we all do. And what was your question? Actually, I haven't, but I do want to. I would just say that I wish her the best because, you know, as a woman to another woman, I hope she does well. I just want to wish her all the best, and I hope she wins because you know, somewhere she's part of the same years of work जो मैंने किया है. तो मुझे ऐसे लगता है कि I hope she does well, and I hope you know, जो हमारे colleagues हैं, contemporaries हैं, I hope whatever they do, they all do well. So I wish her all the best. By ending this year, See, everything that came up, मैंने उसके बारे में पहले कुछ बात नहीं की थी. तो अभी भी जो आएगा मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी. I hope Asur 3 जल्दी आए. I hope so too. Thank you. Again. सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन विद जवान. ये जो किरदार था आपका, ब्रदर का किरदार, एक अलग लेवल का किरदार था. टेल अस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर एंड हाउ ग्रेट रिस्पॉन्स हैज बीन फॉर यू. यार अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हैज़ बीन एक्सीलेंट है. बहुत लोगों को अच्छा लगा. बहुत लोगों ने मैसेज किया. हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से भी बहुत लोगों ने बोला कि लेंथ छोटा था बट इम्पैक्टफुल था. और मैं अपने आप को खुशनसीब ही समझता हूँ यार, टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. And if you want to pick something, any moment in the movie or anything, working with such a great actor, what will यार एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंट ऑन सेट, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. मैं यही कह रहा हूँ. और इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनी थी. आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट ऑल इन ऑल इट्स जस्ट एवरीवन्स ब्लेसिंग. how was your first meet with Shahrukh sir? शाहरुख सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उन्हें थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा मुझे कि उनके साथ में पहले डांस किया करता था. ही वॉज वेरी ग्रेशियस. और पहला हमने जो सीन शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस शूट किया था. फाइट सीक्वेंस या जो सबसे पहले हमने शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस था. तो उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलप होता गया. तो
बस मैं देखता ही रहा कि कितने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग. आई थिंक I was privileged to work with some of the best technicians in the industry. God bless him, yaar. I just want him to take care of his health and keep entertaining us. यार नहीं कर रहा हूँ यार. इनफैक्ट एक नए वेब शो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो that's taking up all my time. नहीं, I don't just want to take a name just for the sake of it. I really don't know anyone. Any season 2 is going to come. City of Dreams, video, season 4. Inshallah. Thank you. Inshallah, आएगा. We are working. Anything line up right now? You're working for something. Any script narration is there? There is a show with Sony Live यार, but they will announce it. वेब शो है और उसके प्रिपरेशन हम कर रहे हैं. प्री प्रोडक्शन मीट चल रही है उसकी. कॉस्ट्यूम्स ये सब कर रहे हैं, बट दे विल अनाउंस इट इवेंचुअली. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ क्या कहा है? कैसे हो आप लोग? अवार्ड मिल रहा है. हाँ, अवार्ड कहाँ है? यही कहीं है, वहाँ है. डन. हाँ, सबसे पहले अर्ज किया है क्या? हम बोलो. हाँ आज की शाम को लेके क्या यार, बहुत अच्छा. शाम में बहुत मज़ा आ रहा है. लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अपने हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई है. अवार्ड्स बेसिकली मेरे लिए, हमें अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बट मेरे लिए वो जिनसे मैं वैसे मुलाकात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक में, मतलब मैं पार्टियाँ नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा, मैं कहीं बाहर नहीं मिल पाता. तो यही मौके होते हैं जहाँ पे मिल पाएँ. तो अपनों से मुलाकात हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है. और अवार्ड अपने आप में अच्छा लगता है यार. एक वैलिडेशन मिलता है. इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मुझे मिला है, और एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड दैट आई हैव गॉट फॉर इंस्पेक्टर अविनाश. तो OTT में मेरा पहला अवार्ड है. तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. थैंक यू सो मच. ये जो साल है, मैं छोटा सा रिकैप बता दूं. बिग बॉस हुआ, इंस्पेक्टर अविनाश, बेकाबू, मैंने तीनों चीज़ देखी. हाँ. तीनों में इंस्पेक्टर अविनाश तो एक अलग ही सीरीज थी. हाँ. वहाँ पे आपका सरदार का किरदार एक अलग लुक. आप अगर बताना चाहोगे पिछले एक साल के बारे में, द वे पीपल हैव लव्ड यू, द वे पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, टेल अस समथिंग अबाउट इट. यार एक तो तुम बहुत अच्छा बात करने लग गए यार. मैंने देखो देखा है, तेरा ग्रोथ वेरी नाइस. मैं मतलब हटा देना, वेरी गुड. यू डूइंग वेरी वेल, सीरियसली. हाँ तो अच्छा, क्या सवाल? हाँ, समझ में आ गया. तो यार इट्स वेरी नाइस. क्या था सवाल? मैं उसके औ में था कि कितना अच्छा बोल रहे हैं. हाँ अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग विद बिग बॉस, या देन इंस्पेक्टर, हाँ जी, हाँ जी. किरदार, पाजी का किरदार, द लुक, द वे, द मसल्स, देन बेकाबू, द टैटूज, आउटस्टैंडिंग. तीनों डिफरेंट पार्ट. द पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन. आई रिकॉग्नाइज यू एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. टेल अस समथिंग. यार बहुत अच्छा लगता है जब काम करने का मौका मिलता है, जब आपको अच्छा काम मिल रहा होता है, आप बैक टू बैक काम कर रहे होते हो, तो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग. बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मिलती है, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतना अप्रिसिएशन, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बहुत नसीब से मिलता है. सब काम करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, और शिद्दत से सब लोग मेहनत करते हैं. मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में बहुत बखूबियत से काम करते हैं और बहुत ही शिद्दत से अपनी क्राफ्ट को वो अपने क्राफ्ट को पुट अप करते हैं हर बार, लेकिन वो अप्रिसिएशन शायद उतना कहीं मिलता नहीं है. सो जब आज मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब आज सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं या काउंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो वो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि अब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है. तो आज मैं बहुत ऐसा सुनता हूँ और ज़्यादा नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार अच्छा क्या है इसमें, क्या है कंटेंट, अच्छा कैसा होगा, क्या होगा. क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतना प्यार आप लोगों के थ्रू सब इतना प्यार देते हैं. सो इट फील्स, आई फील रिस्पॉन्सिबल टू बी लॉट मोर मैच्योर्ड.
मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कोई और ही, मैं बता रहा हूँ कौन किसको डेट कर रहा हूँ मैं। शिट, मैं नाम भूल रहा हूँ। मेरे को 2 दिन पहले पता चला, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ कभी। मैं अभी किसी पार्टी में था, मुझे पता चला मैं उनको डेट कर रहा हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। तो ये जो डेटिंग है ना, ये बड़ा कमाल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सबको डेट कर रहा हूँ, मैं क्या लोग नॉट एट ऑल लॉयल। क्या वन वुमेन मैन, आई हैव 3.1 मिलियन जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, एंड आई लव ऑल ऑफ देम, और मेरा सबके साथ में अफेयर है, और मैं सबके साथ में बहुत सीरियस अफेयर में हूँ। मतलब काय का लॉयल, सॉरी। हाँ कितना इस बार का बिग बॉस आप देख रहे हो? तुम लोग देख रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ, मुझे हाँ देखना ही पड़ता है। हाँ, नहीं, पर बहुत अच्छा है यार, इस बार का भी बिग बॉस बहुत अच्छा है। डिफरेंट है लोग, हमारे टाइम पे डिफरेंट थे, अभी डिफरेंट है, और शो बड़ा मज़ेदार है। तो शो शेप लेगा, मुझे लगता है अपने आप एक शेप लेगा, थोड़ा टाइम और बीतेगा तो। क्या हम फिर कभी आपको देख पाएंगे? हाँ, अभी तक मुझे किसी के पास से पैसे नहीं आए, जिसके पास से पैसे आएंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगा। हाँ हाँ, नहीं ये सभी लोग हैं। अभिषेक भी मेरा कोस्टार रहा है, और वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है। अंकिता भी दोस्त है, अंकिता के हस्बैंड जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, मेरे मित्र। तो विकी और सब लोग बड़े प्यारे हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे अब गेम में क्या चीज़ किसके साथ में क्या फेवर कर रही है नहीं कर रही है, वो मुझे बोलना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। अभिषेक बहुत प्यारा लड़का है, मैं ये बोलूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आगे तक जाए, है ना। तो बहुत जो लोग अभी पहुँचे नहीं होते ना, तो मुझे हमेशा दिल ऐसा करता है कि यार हाँ यार, ये थोड़ा सा और आगे पहुँचे, जीवन में भी आगे पहुँचे। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभिषेक और आगे जाएगा और आगे तक पहुँचे, फिनाले तक जाएगा, तो मुझे खुशी होगी। बाकी इसके बाद में जो भी मुझे पैसे देंगे मैं हाँ, विजुअल मैं नहीं भाई इधर यार बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को एक और खबर दे दूँ, इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 आएगा, आ रहा है। हाँ, तो वेट करें, वो एडिटिंग हो रहा है, वो भी बहुत धमाल है। कल परसों आ जाएगा, आ रहा है कल परसों आ रहा है। कौन था? चल बाकी सब हो गया कि तुम लोग काम करो। कौन नीरज सर, तुम्हारा नाम है क्या? तो तुम क्यों बता रहे हो कि परसों आएगा? चलो हाँ बोलो, मत करो। कहाँ से देखना शुरू करूँ? बस, और एक बाकी आइए, सबसे पहले शुरुआत हड्डी से करते हैं। हड्डी का किरदार, हम जब सारा भाई वैसे सारा भाई का किरदार देखते हैं, हड्डी का किरदार, मेरी फैमिली का किरदार, जी। you have explored so many things जी, in जी। your life. Tell us something about Huddy, how special that character is for you. हड्डी इज़ स्पेशल बिकॉज हड्डी के लिए बहुत मेहनत की थी, हड्डी के लिए मांस ज़्यादा चढ़ाया हड्डी के लिए पूरा लुक चेंज किया, हड्डी के लिए जो रोसेश की छवि थी उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी। सो समवेयर, और रही बात उस तरह के कभी कैरेक्टर किया नहीं था, सो उस जॉनर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आया। सो आई होप कि एंड स्पेशली ये मेरी फैमिली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हड्डी। कपल ऑफ अदर वेब सीरीज़ जो आ रहे हैं, जैसे राना नायडू था या कोटा फैक्ट्री था, तो सब में किरदार अलग अलग करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक कि टेलीविज़न में शायद बहुत कम ही टेलीविज़न या वेब में ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब 22 से 24 अलग किरदार निभा चुके हैं। How difficult as an actor it is to gain so much weight to come back. Yeah. जर्नी रहती है, as we have seen दंगल, राइट। जर्नी रहती है, काफी इम्पोर्टेंट होती है। मैं बड़ा विडंबना वाली बात बताऊं कि जब तक रोसेश लुक अलाइक था ना, मैं
वज़न कम था, तो लॉट ऑफ वर्क डिड नॉट हैपन बिकॉज पीपल थॉट दैट आई कैन नॉट ब्रेक द इमेज. And the day I thought that I'll gain weight and I'll bring that maturity or change over my face or personality, you won't believe it, I did 4 films and 5 web series with that thing. So I do not know which one works. So हड्डी में वही एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ कि because of हड्डी then there is another film. So there are 3 more releases lined up right now. And all 4 different characters but with the same height weight. बाल जब मुड़वाए मैंने तो लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं, मुझे फिल्में मिली. सो समवेयर आई फील कि वो चेंज चाहिए था लोगों को एंड दे एक्सेप्टेड इट एंड दे गेव मी दैट चांस. जी या अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही है, सो नॉट टू मच आई कैन टॉक अबाउट, बट हाँ डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड. सो बाकी ये मेरी फैमिली भी है, कोटा फैक्ट्री भी है, सो गुड वर्क. हड्डी तो फिल्म थी ना, तो उसका सीज़न तो बनेगा ही नहीं. आई डोंट थिंक हड्डी का कुछ है. बट आई हैव डन अ फिल्म विथ नवाज जी विच विल होपफुली विल सी द डे ऑफ, आई मीन लाइट ऑफ डे एनी डे. थैंक यू. Hello. What are my expectations? We are celebrating talent. We are celebrating great stories. I'm here for that. Yeah, there's going to be a lot of talent here tonight, and I'm very excited to meet everybody and share the same space with everyone under one roof. I'm very excited. I'm here for Kafas, and it was very well received by the viewers, and I'm very happy that we are getting an award for that. What would you like to say about Kala? Kala Pani has been trending, and I'm so happy to be a part of that show. And I'm more happy about the fact that everybody has been talking about it internationally and in India. It's a great feeling. Yes. Tell us something more about the script. Why you selected the script? Why not? It's a different show. It's one of its kind, and it's first of its kind in India. You know, we all need to see Indian stories like these. So I'm very happy that people are loving it and looking forward to season 2. Yes, it was trending globally number 10. Yeah, so I'm very happy about that. There's a series which I'm shooting currently called Pan Parda Zarda in Bhopal. So I'm traveling tomorrow. I just came here tonight. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Hi. Hold by hold. Sir, look this. Turn this side. Firstly, how was the discussion? Tell us something about in the company of legends, literally stalwarts. Mahesh ji was there, Vishal was there, Karthik was there, who was the producer of Tali, Karan himself was moderating it, Sonal ji was there. So we had an incredible panel discussion about the streaming platforms and streaming overall and how it is impacting storytelling right now, and the various mediums, how they are overlapping with each other. Are they contributing? Are they not contributing to each other? So a very interesting discussion. I'm sure we'll all get some insight looking at. I know I will, for sure. And being a producer, being an actor, being so many things, how do you see the different kinds of platforms? For an example, last your web series
Tell us something. How do you see the OTT platform? The OTT platform, yeah, it's a big boon, and I think at this point of time it's contributing a lot to overall evolution, not just in storytelling but also employment for actors, technicians, everyone alike. जितने ज़्यादा platforms होंगे, जितने ज़्यादा medium होंगे काम करने के, उतना अच्छा है. And I think एक बहुत अच्छी marriage, एक synergy अब बनती चली जा रही है टेलीविज़न और OTT के बीच में, जो आने वाले समय में I think it will give both the mediums a solid growth. December will be a great year, a great month for you. Sure. Because जब से पिक्चर्स आई हैं, लोगों कह रहे हैं कि क्या है वो किरदार के बारे में. Then इतनी सारी पिक्चर्स भी आपने पिन भी करके रखी हैं. जी. अगर कुछ बताना चाहिए. Faraday के बारे में. Yes. It's shaping up. It's a passion project for us. So it's shaping up very, very beautifully. And not in December, but maybe mid next year, मैं आप लोगों के सामने वो रख पाऊँगा. In December, I think we'll put an announcement teaser out, which should give you a sense of what the film is going to look like. Thank you very much. Yes. What do I want to say on them? All three of them are from Odariya. Literally, Sargun has literally, seen them and got them to the show. So we feel very personal about the three of them. And our best wishes कि अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तीनों बस. That's it. फोटो ले रहे कि वीडियो ले रहे हो? आइए. हाँ जी. सबसे पहले आज डिस्कशन होने वाला है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, स्पेशली कंटेंट को लेके. कंटेंट आप तरह के अलग अलग कंटेंट इंस्टाग्राम में लाते हो. हाँ जी. हाल ही में सीरीज की है, जी. हमने चर्चा भी की है. क्या कुछ कहना चाहोगे सर आप? मैं आई एम रियली एक्साइटेड. और हमारे जैसे एक्टर्स के लिए जो मतलब मैं तो बॉलीवुड में पहले शुरू में छोटे छोटे रोल्स किए हैं, फिर इंस्टाग्राम पे एक्टिंग की, फुल फ्लेज एक्टिंग, एवरीडे एक्टिंग. तो हम जैसे एक्टर्स को जो इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है, उनको भी OTT स्पेस में मौका मिल रहा है और अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी इस वक्त. क्या लगता है क्या डिस्कशन होने वाला है कंटेंट को लेके? हाँ, बड़ा चीज़ जो डिस्कशन होने वाला है उसको लेके आप क्या कहते हैं? मैं वैसे तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ अंदर सुनने के लिए, क्योंकि क्या पता क्या सीखने को मिल जाए. और अभी तो मैं बहुत एक न्यू भी हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा अभी जस्ट एक ही अभी शो हुआ है बस. तो अभी वही है कि क्या सीखने मिलेगा, और अभी तो यही बोल सकता हूँ. कॉफ़ी हाँ, मेरा शो जो है कांस्टेबल गिर पड़े, उसको बहुत प्यारा रिस्पांस है. अभी मैं इनफैक्ट गाड़ी में एक मैसेज पढ़ रहा था, इतना प्यारा मैसेज था वो अबाउट एन एपिसोड के. आपने हर एपिसोड में एक हार्ट लेकिन लाइट सा मूवमेंट दिया हुआ है, और सिर्फ आउट एंड आउट लाइक बिना सर पैर की कॉमेडी नहीं है. तो वो बहुत अच्छा लगा सुन के, और हमारी सारी टीम बहुत एक्साइटेड है, और वी आर जस्ट रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. एंड हमें नहीं पता था कि बच्चों को भी इतना पसंद आएगा. किड्स आर ऑल्सो लविंग इट. सो मज़ा आ रहा है बस. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. यहाँ पे हाँ जी. राइट. आई थिंक क्योंकि पैनल डिस्कशन है और पिछले साल भी मैं आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो आप जी रहे हो, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म के राइज और एक्टिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन तो क्या ही, तैयार होके आई हूँ बस.
बट आई हैव हैड अ डिस्कशन विद द मॉडरेटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. बात करनी है, नए नए थॉट्स, नई चीज़ें सीखी हैं पिछले 1 साल में. एंड आई रिमेंबर कमिंग हियर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम. तो इस बार मैं अवार्ड फंक्शन के लिए भी रुक रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है. सो या Tell us something about OTT, the kind of love that you receive from the OTT platform. हाँ. Any show. How do you see as an audience? Do you review yourself after the project? इतना गहरा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है. देयर वॉज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू नॉट. मैं सोचती थी कि मैं नहीं देखूंगी यार, पता नहीं मैंने क्या किया है, फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूंगी और फिर अच्छा फील नहीं करूंगी. यही कारण है कि मैं सेट पे भी अपने टेक्स नहीं देखती, कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने लगूंगी. बट एज़ यू मैच्योर एज एन आर्टिस्ट यू रियलाइज़ कि यार मज़े भी तो लेने हैं ना, अपने काम का फल भी तो देखना है. सो देन अब मैं देखती हूँ ऑडियंस की तरह से अपना काम, कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ जो देख के मुझे खुशी हो, जो एज एन ऑडियंस मुझे लगे कि यार ये मुझे भी देखना है, ये सिर्फ मैं अपने काम की वजह से नहीं देख रही हूँ. सो अब ये एक छोटा सा मिनी गोल हो गया है मेरी लाइफ में. Upcoming, if I talk about, they will sue me, but I'll give you a little bit of hint. There's a show that's coming out probably this year. हो सकता है कि मैं थोड़ी सी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है. बट दिस शो इज़ गोइंग टू बी ऑन अ बिग OTT प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी वेरी वेल मेड. इट्स वन ऑफ दोज शोज जिसके बारे में बड़ी मैं इमोशनल हूँ और बहुत प्राउड भी हूँ कि हमने क्या बनाया है. सो इट विल कम आउट सून. और जो है सॉरी प्यार झप्पियाँ यार, अगर सबको एक झप्पी दे सकती तो बहुत अच्छा होता पर्सनली, बट वो तो हो नहीं सकता. बट इसलिए वर्चुअल झप्पीज टू ऑल माई फैंस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. Lastly, I just want to add one question. As I have seen you in Oh My God 1. राइट. मूवी आई एक अलग प्लेटफॉर्म, हाँ. अलग टॉपिक पे आई जो लोगों को काफी पसंद आई. आप अगर बताना चाहोगे about the two, and to be very honest, we missed you in the ओह स्वीट, हाउ स्वीट. how do you see? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने फिल्म देखने का चांस नहीं मिला मुझे Oh My God 2, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की चल रही थी, तो थिएटर जाने का वक्त नहीं मिला. बट फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन आई थिंक इन यंग वुमेन. जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों से, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. इस तरह की फिल्म में इतने बड़े स्केल पे इतनी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है जो बहुत ही हश हश टोन्स में की जाती थी. आज भी मेरे घर में ये टॉपिक टैबू है. तो अगर मेरे पेरेंट्स को शायद मैं ये फिल्म दिखा दूँ, या और यंग पेरेंट्स को ये फिल्म दिखा दूँ, और यंग बच्चों को ये फिल्म दिखा दूँ जो 15-16 साल की उम्र में इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं खुद ही और कंफ्यूज हैं, अकेले हैं. तो आर्ट क्या है? आर्ट इज़ टू सॉर्ट ऑफ फीड योर सोल एंड हेल्प यू आउट, एंड एक सोसाइटी का मिरर भी है आर्ट. तो अगर इस तरह की फिल्म इतने बड़े स्केल पे किसी की हेल्प कर जा रही है, किसी को इस तरह की अवेयरनेस लाने में, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. थैंक यू. I'll watch it for sure. Yeah, I'll watch it. Thank you, bye-bye. अच्छे से लीजिए. Thank you. Hello. How are you? Very good. Very good. Hi guys. First and foremost, at Gallica Screen X Awards, I am
Honored to be here. Thank you for inviting me to the entire panel, on the panel, and to the entire team of ScreenX. बस excitement है यार दोस्त. हम जिस बारे में बात करने वाले हैं and the topics are interesting. So I'm looking forward to the chat. कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे हैं अबाउट द वर्ल्ड ऑफ OTT कि आज के टाइम का कंटेंट किस तरीके से लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे काम का एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी बातें होंगी. तो वो तो आप पैनल में देख ही लेंगे. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. हाय दोस्त. जी जी. यार आई फील इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एन एक्टर. मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कार्टेल जैसा शो. और आई फील किसी भी एक्टर के लिए ना वो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. जस्ट ग्रैब ऑन टू इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. और मैंने पूरी कोशिश वही की है. और आई थिंक ना सिर्फ कार्टेल हो, आई थिंक कोई भी काम हो, उसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि ये आखिरी दिन है आपका. जस्ट गो ऑन टू द स्टेज और गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऐसा है कि मतलब इसके बाद कल कोई दूसरा दिन बचेगा नहीं. जस्ट grab onto the opportunity like it's your last and give your best that you have. अगर हम पवित्र रिश्ता की बात करें, co-star अंकिता मैम is inside the Big Boss. Yeah. Would you like to say something? They are looking so well together. यार they look well together. Obviously मैंने शो देखा नहीं है honestly, क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता. तो I hope they are doing good and I hope they are performing well because अंकिता को बड़ा शौक था वो शो का, उसको हमेशा से पसंद था. तो now that she's in the show, I hope that she's doing good. Thank you guys. Thank you. हाँ. मैम थोड़ा सा सेंटर. मैम अब कैसा आजा अंदर वर्षा सिंह. हाँ वेट मैम एक मिनट. हाँ आया जल्दी आ. थोड़ा सा यहाँ पे Thank you. Is there anything for या बाइक. 1 second. एक सेकंड. Too soon, not too soon. Very early in the evening. Firstly, welcome. What would you like to say about the discussion? There will be a discussion at मैम लुक सेंटर. Tell us something about I mean, it's a great this thing. It's always good to be part of panels because I think आप अपने point of view लगा सकते हो. It's a great platform to put your point of view out there. Western मेरे घर के बहुत पास है, so I'm always very happy to come here. Yes. And I think I'm doing a panel with Siddharth, so it's going to be fun to have a chat. So do you prepare yourself for any panel discussion? बरका जी. I think लुक सेंटर. Look center. Yeah. I think it depends. Like आज मेरी fireside chat is basically talking about my journey, my life. Like an alternate route to stardom is what they're calling it. खुद को बोलने में अजीब लगता है.
But yeah, it's going to be a fun chat. देखते हैं actually how it goes. मैंने कुछ ज़्यादा prepare किया नहीं है. बस let's see. It's going to be a fun chat. Tell us something about your social media is also doing well. OTT platforms also. Would you like to say something about your journey in a short? I think आजकल there's no fixed demarcation कि या तो आप सिर्फ OTT करो या आप सिर्फ फिल्म करो या सिर्फ ऐड कर रहे हो या सिर्फ YouTube content कर रहे हो. I think वो boundaries have merged now. So it's very important to have a nice social media community जहाँ आप community build करते हो और वो community grows across all platforms. तो या तो आपके OTT shows हो गए, OTT releases हो गए, आपका खुद का content हो गया. I think those lines are blurring now. So it's a very nice, fun space to be in. Thank you. Thank you. सर यहाँ पे विजुअल्स करते हैं सर पहले सर सबसे पहले नेशनल अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. एक ऐसी फिल्म को मिला है नेशनल अवार्ड, एक ऐसे जिससे गर्व होता है पूरे इंडिया को सर. आज भी एक और अवार्ड मिला सर. वो आज का अवार्ड ये है, आज का ये है क्रिमिनल जस्टिस के मिला है. थैंक यू सो मच. विनम्र हूँ, हम्बल हूँ. एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट लेने के लिए, तो जल्दी में भी हूँ. क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में, नेशनल अवार्ड एंड इस अवार्ड के बारे में? अगर लोगों से अवार्ड जितना मिले अच्छा ही लगता है, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा. धन्यवाद दर्शकों का. थैंक यू ऑडियंस. डायरेक्टर तो यही ओ माय गॉड 2 का. इधर आइए, यही है अमित जी. इधर आइए तो भाई. एक्टर ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर हैं. एक्टर के साथ फायदा ये होता है कि वो दिख जाता है, लोग दिखते कम है, इसलिए मेरे साथी थे पीछे तो मैंने बुला लिया. सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई देना चाहूँगा ओ माय गॉड 2 की. एक ऐसे विषय पे मूवी आई जो लोग चाहते थे बट किसी ने इस तरह की मूवी नहीं बनाई, और सर के किरदार ने तो काफ़ी कमाल कर दिया. अक्षय सर के किरदार ने जो क्लाइमैक्स था बहुत अच्छा था सर. क्या कुछ करना चाहोगे लोगों को? नहीं, पहले तो धन्यवाद, हम दोनों की तरफ से धन्यवाद. जैसे कि हमेशा कहते हैं ये डेमोक्रेटिक फिल्म हो गई है, मतलब इसको जनता ने सुपरहिट बनाया है. तो धन्यवाद सिर्फ जनता का ही, क्योंकि जिसने सर आँखों पे बिठाया फिल्म को. और आशा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी कंधे पे आई है, तो फिर इसके बाद जो काम हो वो और जिम्मेदारी के साथ हो. हाँ, ट्रिकी सब्जेक्ट था, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वट एवर द इंटेंट वॉज, वो पेड हो गया, मतलब वो काम आ गया. अभी सवाल छोड़ दो. मिर्ज़ापुर अमेजॉन प्राइम पे अमेजॉन वीडियो बताएगा. आ जाओ जल्दी. रोल अहमद भाई एक से रुक जाओ. ठाकुर अहमद भाई ठाकुर अच्छे से वाइट बोलो एक बार बोल के मिला कुछ. Well, you know, you aspire to be something in life when it's a combination of the army, the navy, and the air force together. So that's what eventually it turned out to be. Thank you. Thank you guys. Thanks.
I'm very excited to be here, and we have amazing artists speaking here on the panel to discuss the future of OTT streaming, about how content is king these days, and yeah, I'm looking forward to having a great time with all the great artists around me. Well, it's the best time for actors to be a part of the industry right now, I feel, because now more than ever we say content is king. So as actors, you get the opportunity to kind of be a part of amazing stories and get great characters to play. Yes, there are a few that are upcoming for different platforms that I can't reveal a lot about right now. But the latest release has been a show called Kala, which is on Disney Plus Hotstar, in which I play a parallel lead with Avinash Tiwari. So that was quite interesting because I got to work with a director like Bijoy Nambiar. Well, I think they're up and coming right now. Along with me, their journey is also beginning. So let's see how it goes. बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है, किसे सपोर्ट कर रही है? मैं बिग बॉस को फॉलो नहीं कर रही हूँ. Thank you. Look center. नहीं आना है ना? फर्स्टली मैम 10th को फाइव पे आ रही है, उसके पहले जानना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड अबाउट योर कैरेक्टर हैज प्लेड समथिंग रियली वेल. टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स फॉर द पीपल. जवान का रिंगटोन भी आ गया, मतलब वो माहौल बन गया. बट इट्स वन ऑफ घूमर मेरे लिए इट्स द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माई लाइफ. क्योंकि क्रिकेट तो एक बात है, बट माई कैरेक्टर द फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रही है. तो रिस्पॉन्स फ्रॉम फैंस, रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव रही है. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट फाइनली लार्जर ऑडियंस तक पहुँचेंगी, क्योंकि इट वॉज सब कुछ ठीक था, सिर्फ रिलीज डेट ठीक नहीं थी. सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस. Malki sir always brings something new to the table. When you got to know about the script, what was your first reaction? You playing a left arm, and it was not practice. Like you are a right-handed or left-handed. I'm a righty in life, so I had to become a left-hander. It was extremely difficult because right hand से हम जिंदगी जीते, and then suddenly to become a left-hander and with someone like R. Balki who's thorough genius. चीट शॉट्स नहीं होते हैं, या उनके साथ जो होता है वो इट्स ऑल रियल टाइम. सो प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिस की, बट क्रिकेट एक बात थी, इमोशनली फिल्म बहुत डिमांडिंग थी. सो फॉर मी दैट वाज मच टफर देन द फिजिकल पार्ट. बट इट्स I have said this with Rakesh sir, I have said this with Anurag Kashyap, now I'm saying it with R. Balki. I just am extremely blessed that I get to work with makers like them. इस पिक्चर से भी पहले हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पे आपका क्रिकेट और आपका प्यार काफ़ी गहरा है. If you get a chance to play anybody biopic, कौन से ऐसे खिलाड़ी हुए इंडिया से या फिर any Right now, actually, I'm very happy with Ghumar. I don't think I want to do a biopic and a cricket one right now, क्योंकि अभी तो cricket film हुई है. So maybe not a cricketer's biopic, but maybe another runner, maybe another sport. So not. any sports person or any film star? I think PV Sindhu. I think she's got quite a story. So if PV Sindhu does a film someday. Okay, apart from this, anything coming up? I'm working with Neeraj Pandey right now on Special Ops 2. So
We are currently shooting for Special Ops 2, and I finished a film with Excel and Rahul Dolakia sir, so that will release hopefully next year, and another film that starts in Jan. Thank you, thank you, thank you. Screen X. Screen X. Yeah. Screen XX. Screen double X. Yeah. So we'll start with visuals, then mics. Okay, ma'am. Okay, visuals. Thank you. Thank you. Okay, let's get Yami as well. Yeah. All right. Come. This side. This side. Look here. Look here. Done, guys? Okay. All right, thank you. Bite. Manish sir, mic. Sami, bite. You did. You finished your bites. Okay. Yes. Hello, sir. Firstly, congratulations for Boomer. It is doing really well, sir. What was there in your mind to work on this movie? Just wanted you guys to enjoy it. Actually, it was not like it's a film that just shows that nothing's impossible fundamentally, and when you have a challenge is when you can kind of really do something new, invent something new. That was what the film is about. And now it is going to come on TV. Yeah, I'm so glad. A lot more people will see it. I just feel that when you have a platform like this for a film like this, especially in a cricket season, I think a lot more people are going to see it. And this is a film that you will enjoy with families. You will enjoy like a match. It's like a match you'll not see in the World Cup. You know, you will see straight cricket in the World Cup. You're going to see a very different kind of a game. And here it's just not about the game. It's about life as a game. So that's where I think Zee is a great platform to kind of do this because, I mean, who reaches so many people? So I think it's fabulous to kind of have so many people watch and really all kinds of people, just not the elite, not this thing. It's people from all classes to kind of be on and it's a film like that. I think it's an amazing work. I always loved Balki sir's work, and he's again nailed it. It's a story of a challenged person working against all odds and winning. So just loved it, and I'm sure our audience will love it as well. And like Balki mentioned, people watch ZEE5 across every pin code in the country, so it will reach everyone, and we'll be happy about it. So you've been known to the out-of-box cinema. Right from Chini come part of this industry. I'm wondering what is next. I don't know the meaning of out of box cinema because that's my box, so I don't know what is out of the box. You just try and do interesting films. I would say quality cinema. Yeah, I hope everything is mainstream. I don't know what is mainstream again. You hope every film is mainstream. As many people watch it, it's always good. I don't know what's next. It just depends on a film that I really want to spend a year or two doing it. If an idea like that comes, I'll do it. Thank you. Thank you guys.
places, we have researched it. Tell us something about your research when you started with this project. Yeah, Huddy is basically it's not a film that directly deals with any social issue, right? Because as much as I want to champion the cause of this community, I want this community to step forward. I am not an authority on the problems that this community has faced, right? वो लोग क्या फेस करते हैं हर दिन, वो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते. So all I wanted to do was just bring in a story that helps us realize कि ये लोग भी human beings हैं. ये लोग भी हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से they have been living with us in our community, in our country, in our scriptures they have been mentioned. So we need to treat them as first of all fellow human beings. जैसे मैं, आप, इतने सारे लोग हैं, they shouldn't get a special, outcasted treatment. They need to be respected like every other human being. So that was the first attempt that I wanted to make with a story like Huddy. What was your first reaction when you saw that outfit and in that makeup? इसका कोई बहुत ही एंटी क्लाइमैक्टिक आंसर है बिकॉज वी हैड वर्कड अ लॉट ऑन द पेपर. सो हमने उनके स्केचेस वगैरह बनाए थे, बट व्हाट आई रिमेंबर इज हिम गिविंग द फर्स्ट शॉट एज हरिका and him embracing all the emotion that comes with this character. So that was like a revelation to what an actor can be. So amazing. सवाल जवाब है. Yes, yes. No, I'm looking forward for the discussions which has taken place, and yes, looking forward for the evening. बहुत सारे अच्छे awards दिए जाएंगे आज, plus it's a great thing, and eventually आप देखोगे तो now people have opportunities to receive and achieve an award also by such awards functions, and yeah, looking forward. And if you want to explore something in OTT platform, like any particular character, like villain character or any character, ऐसा character जो आप explore करना है, कौन सा हो? Frankly speaking, I am looking forward, and I'm trying, and I'm working on a character also. I want to do something which I have not done on television, and I don't mind doing that also, because I think मेरी television audience एक separate है, और वो अगर उनको मैं OTT पे लेके आना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि वो गौरव को ऐसे में देखे जो शायद TV पे अभी तक नहीं किया. Let's see. I don't mind playing a negative also, so let's see if it goes well. How much you're following Bigg Boss? I am actually following very audio of it, because मेरे घर में चलते रह रहा है. So whenever I'm in the house, I see it audio-wise. There's a lot of screaming happening. तो updates आ रहे हैं घर से और friends से by all the social media, but not watching it that regular. Any of your friend is there? Yeah, Vicky is there, Ankita is there, and I think they are only the good friends. Yeah, I know them. They are the fellow actors, but presently looking forward to Vicky. Yes, and it's a good sign for Vicky also, so that people are knowing him very well. Yeah, people know him already, but he's coming across as a person what he is already. तो अच्छा खेल रहा है, और है बहुत सारी उम्मीदें आगे. Thank you so much. Thank you, thank you.
so this is like great evening and I'm really excited for this event and देखते हैं आज कौन क्या जीतते हैं अवार्ड एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती, लेट्स सी। Yeah, there is one project is coming up for Amazon. So I cannot reveal the name right now, but I'll surely soon. Thank you so much. Thank you. स्क्रीनिक्स मैं बहुत चाहता था पहले भी आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई कुडंट मेक इट, बस दिस टाइम आई मेड इट एंड आई हैवंट सीन येट क्या भी चल रहा है, अभी जाके देखूंगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्क्रीनिक्स। OTT platforms, yeah. This is very exciting for me. I have just left daily soaps, which I have been doing since 26 years, and I have just left daily soap, and now I am doing OTT. My 2 series are coming. That is Bhuchal and Clean Up Crew. Yes, I have made, people have made me for daily soap, and I love working in daily soap, and since Sonpari and back Saas and Banegi Apni Baat, but since Sonpari and Diya Bati and all, that was, yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा था मतलब, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी डेली सोप करना। अभी नए सब्जेक्ट आ रहे हैं OTT पर, तो उसमें करने में मज़ा आ रहा है मुझे। थैंक यू। सो मैं भी खास तौर पर इनके साथ खड़ी हूँ, ये मेरे रमन राघव के पति हैं। हमने एक साथ फिल्म की थी। हाँ जी, अनुराग की इस साइड। मुझे भी, मैंने देखा आपको, तो मैंने कहा यार इनके साथ तो मुझे फोटो खिंचवानी है। थैंक यू। कैसा है सर? आई एम वेटिंग। थैंक यू जी। ठीक है। Hi. I'm very thankful to Screen XX Awards. मेरा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट, तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF and ZEE5 of course, and thank you Screen XX Awards jury. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हूँ तो अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए। हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा चलो, जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया, तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से। हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ, और
साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आई एम शूटिंग फॉर द सेम. और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लव स्टोरीज टू. ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. यहाँ सनी साथ में ले ले. आई लव टू डू एनीथिंग फॉर यू यार. हाँ भाई, यहाँ पे सर कहीं और. अरे यार मैं भी रणवीर और दीपिका की तरफ हो गया ना इनका. बाइट करो. हाँ ओके. आज बाइट साथ में ले ले फिर फोटो. सबसे पहले इस पर एक शुरुआत करता हूँ. द रेटिंग हैज बीन सच अ ग्रेट. IMDb रेटिंग इज सच अ वेल. सो शुरुआत 2 से करता हूँ. व्हाट आर द रिस्पांस फॉर द सीजन 2? रिस्पांस तो बहुत ही ख़तरनाक है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हस्बे मामूल. और हम बहुत खुश हैं कि एक और बार हम लोग आए हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे आए हैं. और इस बात की बहुत खुशी है हम दोनों को और बड़े लेवल पे ये चीज़ें पहुंच रही है लोगों तक. तो ये एक जीत है, उन लोगों की जीत है जो छोटे सपने देखते हैं और कहीं पहुंचने की मुकाम हासिल करना चाहते हैं. और फिर वो YouTube से वो शो, जनता जो है हमारी, वही है असली हीरो हमारी. उन्होंने ही हमें YouTube से फिर Amazon प्राइम पे पहुँचे हैं और मुझे लग रहा है सबके दिलों में घर करते हुए जा रहे हैं. तो उसी की मोहब्बत हमें मिल रही है और वही रिटर्न में हम ले रहे हैं और बहुत खुश हैं. इनसे भी तो पूछ लो. नहीं सेम विचार. I think there's a lot of gratitude here. I'm just an actor. I mean, if they're going to come very close to me and know a little more of me, they'll be disappointed. I'm nothing like the guy I'm playing on camera. ऐसा नहीं है. अच्छा मतलब अच्छा तो है ही. डिसअपॉइंट नहीं होंगे मैं वो कहूँगा. अकड़ मेरे पे उतरी ही है लेकिन इंटेलिजेंस कम है. बट हाँ मतलब अच्छा लगता है यार. आई मीन बहुत. DM साहब यहाँ इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू दो यार. आखिरी सवाल. Just 4 more shots. So we have seen संदीप भैया and Professor 3 के लिए हम कितना वेट करना पड़ेगा और कोई ऐसा किरदार बीच में हम देख पाएंगे? क्या पता एक और गर्लफ्रेंड आ जाए इसकी, एक और तीसरी, हमें नहीं पता. आई थिंक अभी एस्पिरेंट 3 आएगा सीधा, जहाँ तक मुझे लगता है. बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर द बेटर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन. हम लोग तो यार किरदार हैं बस. मैं पहले भी एक बार पिक्चर्स 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने 2017 में और पिक्चर्स 2 आया 2022 में. सो वी वुडंट नो एक्चुअली. थैंक यू. सोलो क्या सोलो खींच लो. चलो इधर. हाँ भाई. थैंक यू. हाँ मतलब जा रहा हूँ यार.
सॉरी सर. So firstly, starting congratulations about the response. It's very great. Like I told you Yeah. earlier, tell us something about the response. How you got somebody? अरे वेरी नाइस रिस्पॉन्स एंड ऑनेस्टली वी डिडंट एक्सपेक्ट. आई मीन वी न्यू हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया है, बट इतना अच्छा लगेगा लोगों को वी डिडंट एक्सपेक्ट. और आज भी इनफैक्ट मेरी अमेजॉन मिनी टीवी से बात कुछ हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स वी ऑल्सो डिडंट थिंक वुड हैपन. उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, DMs वगैरह. सो या मोस्टली गर्ल्स ओनली एंड मोस्टली दे आर सेइंग कि बहुत रिलेटेबल लगा उनको. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट कि 30 की एज तक शादी हो जानी चाहिए, ये जो स्ट्रेस होता है लड़कियों को, और ये उनको बहुत रिलेटेबल लगा. इनफैक्ट अभी एट मामी ओनली देयर वाज दिस वन गर्ल, वो इतना मतलब शी वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड शी वाज ऐसे नर्वस एंड यू नो शी वाज टेलिंग मी कि मुझे बहुत टाइम के बाद कोई अच्छा शो लगा है विच इज़ टेलिंग माई स्टोरी एंड द रिलेशनशिप विद द मदर, विद बुआ का कैरेक्टर तो हिट हो गया है, यू नो. सो हाँ, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई. यस, थैंक यू. आई थिंक वो एक तो शुरू से हम दोनों हम जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले से, बट जैसे ही हम लोग मिले रीडिंग के टाइम तो वी इमीडिएटली हिट इट ऑफ. आई थिंक वो भी शायद इस वजह से कि वो भी दिल्ली का है, मैं भी दिल्ली से हूँ और कहानी भी दिल्ली में सेट है, तो इनवेरिबली हम लोग कुछ ना कुछ दिल्ली की बातें शुरू हो जाती थी, दिल्ली के खाने की बात शुरू हो जाती थी. इवन सेट पे आई थिंक कुछ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर लो, लेकिन अल्टीमेटली छोले कुलचे पे आके ही बात ख़त्म होती थी. सो हाँ, आई थिंक वी जस्ट बॉन्डेड ऑन दिल्ली. आई थिंक आई डोंट नो, डोंट आस्क मी. अभी मुझे कुछ नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता है. ना 4 more shots का पता है, ना ट्रिपलिंग का. नहीं, नथिंग इज़ डन अभी. ना ट्रिपलिंग का, ना 4 more shots का, ना हाफ लव हाफ अरेंज का नेक्स्ट सीजन. बट सबके आ रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ. थैंक यू. यू टू. Much better, yeah. Recovery और better. Yeah. करना है कुछ. अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू. बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, तो आई मीन आई एम सो हैप्पी. पीपल बिंज वॉच कर चुके हैं लोग एंड दे आर डिमांडिंग फॉर सीज़न 3. सो बहुत आई थिंक मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, बट या आई मीन लविंग द रिस्पांस सो फार सो गुड. एंड ऐसे ही एंटरटेन करना काम है यार, तो वही है कि एंटरटेन करते रहें, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहे लोगों को पसंद आ रहा है, तो आई एम सो हैप्पी. दे आर वेरी हैप्पी यार. आई मीन अगेन इतने सालों बाद एक वापस डांस शो बना है, कैंपस लाइफ के ऊपर बना है, इजी शो है, इजी वॉच शो है इन टर्म्स ऑफ विद नो डार्क कंटेंट और एनीथिंग. सो यू नो पीपल आर लविंग इट एंड या सो या दे लविंग इट. पता नहीं, मुझे देखते हैं यार कुछ को. हाँ बिल्कुल, हाँ एब्सोल्युटली. मतलब हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बने, बट द IP इज़ नॉट अस, सो हम लोग वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो आई थिंक स्टार या हॉटस्टार को बोलना पड़ेगा ये सब दैट दे रिवाइव दैट शो. बाकी तो आई एम मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट. हाँ बिल्कुल आएगा यार. 3 तो डेफिनेटली आएगा. नहीं कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू. मुझे बेस्ट नेगेटिव
एट गली चॉइस अवार्ड मिला है फॉर आखिरी सच। काफ़ी रीसेंट शो है तो मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग फॉर माई शो सो सून, बट आई थिंक आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं देश से बाहर था, स्टोलन को लेकर मैं फेस्टिवल में घूम रहा था और तब मुझे पता नहीं था, तब आखिरी सच तब रिलीज़ हुआ था, मुझे पता नहीं था भारत में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत पता चल रहा था, लेकिन जब मैं इंडिया की नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ रहा था, दैट्स व्हेन आई सॉ दैट पीपल वर कमिंग टू मी एंड दे वर लाइक आपका शो देखा, बड़ा मज़ा आया, एंड आई वाज लाइक ओके या पाताल लोक, मिर्ज़ापुर, एंड देन सडनली दे सेड नहीं आखिरी सच, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस शो इज़ रियली पिकिंग अप बिकॉज व्हेन people watch it and it's an immediate effect, you see it on the streets. It happened with Mirzapur, it happened with Patal Lok, it happened with Aakhri Sach. So I'm very very happy that I got it for this. आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, एक सीन रहता है जहाँ पे फादर की छवि आपके जो दिखती है, उसके बाद आप डायलॉग राइटिंग इट्स आउटस्टैंडिंग, एडिटिंग वाइज एंड प्लस योर एक्टिंग हैज बीन ग्रेट. Thank you. Tell us something about that particular shoot. How difficult was it for you as an actor? The problem is that जो मैं कैरेक्टर्स आज से पहले जितने मैंने किए वो सारे फिक्शन थे, मतलब फिक्शनल थे, बट दिस वॉज पिक्ड इंस्पायर्ड बाय अ रियल इंसिडेंट. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके योर कैरेक्टर कैन एक्चुअली हैज़ एक्चुअली लिव्ड, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी जी है और ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके घर में और इस तरह से उस किरदार ने किया होगा, तो और जब आप कर रहे होते तो आपको लगता है शिट एक इंसान था जिसकी ज़िंदगी में ये एक सच्चाई थी. तो ये काफ़ी समझा नहीं सकता बट डरावना, बट इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ फियर. इट्स वेरी ईरी टू अंडरस्टैंड दैट हमारे सोसाइटी में ही शायद कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है लेकिन वो मदद उनको मिल नहीं रही है. सो ऑफकोर्स इफ़ यू हैव सीन द शो वी अंडरस्टैंड दैट ही इज़ गोइंग थ्रू सम साइकोसिस इशू, ही इज़ गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल इशूज़, लेकिन घर में परिवार में बात नहीं कर पा रहे. तो नो दैट इज़, वो मेरे लिए काफ़ी स्कैरी था कि यार ये बिलीव करना, यूजुअली क्या होता है कि आपको बिलीव करवाना होता है अपने आप को कि नहीं ऐसा हुआ होगा रियलिटी में, तो कोई चीज़ हुई है तो फिर वो आप जब कर रहे हो तो वो मान लेना काफ़ी डरावना. मुझे एक्चुअली बुरे सपने आते थे, मैंने डायरेक्टर को जाके बोली थी बात रॉबी सर को कि क्या मेरे को बुरे सपने आ रहे. थैंक यू. या ऑफकोर्स Apurva is coming on 15th November, Hotstar again. So looking forward to that. I am out and out negative in that. उसमें कोई sympathy नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से. Thank you so much. इधर आ जाओ या बाहर यहाँ भी. अरे एक बार बाहर चलेंगे तो मेरे साथ आ जाओ. कैमरा कहाँ गया? ये अपना मेरा कैमरा है. चलो मेरा कहाँ है? हाँ वो रहा. ये क्यों कर रहा हूँ मैं? ये क्यों नहीं? क्या करना है? ऐसे पकड़ो ना ढंग से. इधर देखो, ये बहुत सही लग रहा है. बाहर जाओ. अबे एक इधर बोल के देखो ताकि तीनों एक जगह देखें. नहीं अरे बोल के खिंचा दे ना इधर. ये बीच वाला अपना ऐसे करेंगे. नहीं इंटरव्यू हो गया क्या? हाँ शुरू भी हो गए थे. मैं देता हूँ. हाँ तू दे दे. पर ऐसा एक्टिंग करने के अवार्ड नहीं मिला है ना? क्या मिल चुका है अवार्ड? अरे मिला. हाँ आप करो. हाँ करो. हाँ बोलिए सर. थैंक यू सो मच. अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है यार. घर जाऊँगा और मम्मी को दिखाऊंगा कि एक और अवार्ड लेके आया हूँ. हाँ जी. आई थिंक कॉमेडी करना इसलिए भी टफ होता है क्योंकि सबसे पहले तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है और अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले कॉमेडी के मिलते नहीं हैं, क्योंकि जो उन लोगों को फ़नी लगता है वो हमको फ़नी नहीं लगता है. तो सबको फ़नी लगना बहुत ज़रूरी है एक जोक. सो वो बनाना, वो लिखना और वो टीम का साथ में आना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए कितने कम कॉमेडी बनती है. हम देखते हैं कितना ड्रामा क्राइम बनता है, कॉमेडी बहुत कम बनता है क्योंकि लिखना और उसको परफॉर्म करना मुश्किल है. प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रिलीज़ होंगे एक एक करके. अभी 4 फिल्में जो शूट कर चुका हूँ मैं और वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में है, पोस्ट प्रोडक्शन में, और बहुत जल्दी होपफुली लाइन लगनी शुरू होगी. थैंक यू.
Tali is Sushmita Sen. Yeah, the Sushmita Sen character. Yeah. So yeah, Tali, I mean, we have been getting great response on Tali. Tali being a show which has been very close to our hearts. So when we first started getting involved in the writing stage along with the writer Kshitij Patwardhan, we took close to around 2.5 hours. 2.5 साल हमने प्यार से लिए, हमने लिखा, फिर सुष्मिता सेन केम ऑन बोर्ड, उन्होंने वो रोल अपने तरीके से बनाना, इन्वॉल्व होने की कोशिश की, शी गॉट इन्वॉल्व, वेट पुट ऑन किया, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में, एक कम से कम 6 महीने का प्रोसेस हुआ, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, एक कम्युनिटी की सब स्टोरी है, अगर आप थोड़ा भी गलत कम्युनिकेट करना चाहोगे तो फिर इट रीचेज द रॉन्ग चैनल्स, तो आप 101% एज ताली जिस तरीके से हमने ऑडियंस तक लेकर आए, उसके पीछे इतना ज़्यादा रिसर्च लग गया हमें, कम से कम 1-1.5-2 साल का रिसर्च था कि वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ उनकी कौन से भगवान को पूछते हैं, से लेके कौन से सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ी गई थी उनके राइट्स के लिए, तब क्या क्या क्लॉजेस के अगेंस्ट केस लड़ी गई थी. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च था, बहुत मज़ा आया, बहुत. यस, एक स्मॉल गणेश की स्टोरी है जिसके अंदर वो एक औरत है, उसे पता है कि उसे माँ बनना है, और वो जब श्री गौरी सावंत जब वो बनते हैं तब उनकी एक जर्नी है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही और फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फ़ाइट किया है, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी है, क्योंकि हम भी बहुत स्कैर्ड थे. इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू पिक अप. जस्ट ताली के पहले हमारी रफू चक्कर करके एक सीरीज़ आई थी मनीष पॉल के साथ, विच वॉज डिफरेंट, विच वॉज कमर्शियल, मासी, कॉनमैन की शो थी, एंड इट वॉज कम्प्लीटली ऑन द एज. मनीष ने भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग की थी, क्योंकि मनीष को लोगों ने तभी देखा नहीं था कि एक मनीष हु इज़ नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, हु इज़ नोन फॉर हिज एंकरिंग, वो उस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली बहुत मिक्स बैग और अलग अलग किरदार रहते हैं हमारे लिए भी. हाँ, मनीष पॉल का, हाँ, यस. मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट प्रिंस है, क्योंकि वो हमारे ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करता है. वो एक कॉमन मैन है, वो उसकी एक अपनी एक जर्नी है, वो क्यों कॉनमैन बनता है उसके पीछे का भी रीजनिंग है जो आपने देखा होगा शो में. तो प्रिंस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि आई बिलीव इन हिम, और उसने जो किया वो शायद से गलत किया होगा, बट वो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से गलत करता है, और देन ही टेक्स इट रिवर्स. तो मेरे लिए रॉबिन हुड है वो. ऑब्वियसली बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, बट हम फिलहाल में एक शूट कर रहे हैं सीरीज़. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ही टाइट लिप्ड है. बहुत एक बायोपिक है वापस, जो हमने डिसाइड नहीं करते कि हमने जैसे श्री गौरी सावंत की बायोपिक की थी, बट एक बुक राइट है जो हमने ली है, बायोपिक है. तो बहुत जल्द अगले साल हम ऑन फ्लो जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. Yeah, this is a very nice initiative where they've brought in people from the film industry, from different walks of the film industry. There are actors, producers, writers, studio heads. They've come under one platform, and a lot of discussion is happening. A lot of new ideas are coming up, and we've been speaking about problems faced by the film industry and possible solutions. So it's a very good synergy of ideas. Yeah. Yes. We spoke about censorship. How censorship is getting more and more strict from the censor board and from within the industry. Within the studio structure, the censorship is getting very, very strict by the minute. So that is a very big deterrent, and it's a suffocating thing for creators and for storytellers, for writers and directors. So there was a very intense discussion about censorship, and everybody had their own point of view. So a lot of good ideas came up as to what can be possible solutions for diluting censorship, but at the same time keeping a responsibility towards showing content which is not really derogatory and which can possibly damage society. So some good solutions came up. So it was very productive.